سعودی عرب ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کا مشن، وزیر اعظم عمران خان کی شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقاتیں، ایران سعودی عرب کشیدگی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم کا خطے میں تنازعات کے سیاسی اور سفارتکاری کے ذریعے حل پر زور، ملاقات میں شاہ محمود DGI اور ذوالفقار بخاری بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، عمران خان کی وفد کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے، ملک کی ترقی و خوشحالی، امت مسلمہ کے اتحاد و یگانگت کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر پہنچنے پر گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ عمران خان دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ برطانوی شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان، شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن آج چترال روانہ ہوں گے، بروغل اور بمبوریت جائیں گے، معزز مہمان کل لاہور بھی آئیں گے۔ شاہی جوڑے نے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی، رکشے کی سواری بھی کی۔ ادھر وزیر اعظم کو رائل فیملی کی 3 نسلوں سے ملاقات کا اعزاز، عمران خان نے 1974 میں ملکہ الزبتھ دوئم، 1996 میں شہزادی ڈیانا اور اب شہزادہ ولیم سے ملاقات کی ہے۔ مولانا کا آزادی مارچ، وزیر اعظم نے آج سپہر تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ عمران خان آزادی مارچ روکنے کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں سے تجاویز لیں گے۔ ادھر JUI کا حکمران جماعت سے کسی سطح پر بھی مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ، مولانا کی زیر صدارت کور کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری، فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان 18 اکتوبر کو لاہور میں ملاقات طے ہے۔ آزادی مارچ پر حتمی فیصلے ہوں گے، نون لیگ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ فیصل آباد کے سستے بازار کی حالت خستہ، کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر سستے بازار انتظامیہ کی نااہلی کے باعث تبدیل۔ میونسپل کارپوریشن عوام کو سستی اشیاء فراہم کرنے والے بازاروں کی تاحال ٹینڈر بھی جاری نہ کر سکی، عوام کی سہولت کے لیے بنے سستے بازار کچرے کا ڈھیر بن گئے۔ سفید سنگ مرمر اور لوہے کے اوزاروں سے ہلکی ضربیں، کتبوں پر خطاطی بڑی مہارت کا کام، محنت زیادہ اور کم ہے دام۔ حیدرآباد میں کتبہ سازی سے وابستہ افراد کسب پرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور، دور جدید میں کتبے بنانے کا فن بھی معدوم ہونے لگا۔ برطانوی شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان، شاہی جوڑا آج شمالی علاقوں کی سیر پر چترال جائے گا۔ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ 17 اکتوبر کو لاہور کا دورہ کریں گے۔ شاہی مہمانوں نے گزشتہ روز اسلام آباد میں مصروف دن گزارا۔ شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن نے شکر پڑیاں پر عشائیے میں شرکت کی۔ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ برطانوی شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان، شاہی جوڑا آج شمالی علاقوں کی سیر پر چترال جائے گا۔ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ 17 اکتوبر کو لاہور کا دورہ کریں گے۔ کیٹ میڈلٹن اور شہزادہ ولیم 17 اکتوبر کو لاہور کا بھی دورہ کریں گے۔ بات کریں گے فیصل رضا سے۔ فیصل، آج برطانوی شاہی جوڑے کی کیا مصروفیات ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 14 اکتوبر کو برطانوی شاہی جوڑا شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ پاکستان پہنچے تھے۔ کل انہوں نے انتہائی مصروف دن گزارا اسلام آباد میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج ان کا دورہ جو ہے وہ ان کا تیسرا دن ہے، اور آج دورے کے تیسرے روز شاہی مہمانوں کے دورے کا جو شیڈیول ہے اس میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ کچھ معمولی تبدیلی کی گئی ہے۔ برائے برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ برطانوی شاہی جوڑا آج جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کا دورہ کرے گا۔ شہزادہ ولیم، شہزادی کیٹ جو ہیں وہ آج بذریعہ ہیلی کاپٹر اسلام آباد سے چترال جائیں گے۔ چترال کے مقامی گاؤں کا فضائی دورہ بھی انہیں کروایا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ چترال میں ماحولیات سے متعلق جو ہے وہ کمیونٹی تقریب میں شریک ہوں گے اور چترال کے لوگوں کے ساتھ وہ ملاقاتیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس دورے کے بعد وہ واپس اسلام آباد آئیں گے، اور برٹش ہائی کمیشن میں ان کی رہائش گاہ ہے تو وہاں پر جو ہے وہ آرام کریں گے۔ کل انہوں نے جو ہے وہ لاہور کا ایک مصروف ترین دورہ جو ہے وہ کرنا ہے، لیکن آج ان کا دورہ جو ہے وہ شمالی علاقہ جات اور خاص طور پر جو ہے وہ چترال کا دورہ ہوگا۔ جی
शुक्रिया फैसल, इस मुतल्लिक़ आप हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 2 हफ्ते रह गए हैं। इस्लामाबाद के ज़िमनी इंतखाबात किसी सियासी पार्टी ने उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं किए। इस्लामाबाद की 4 यूनियन काउंसिल्स में 6 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 नवंबर को होंगे। 3 नशिस्तों पर चेयरमैन, 2 पर वाइस चेयरमैन, 1 पर यूथ काउंसलर्स के लिए इंतखाबात होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में 2015 में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ था। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे, राजा काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। राजा काशिफ, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी होने वाले शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है वो 2 नवंबर को इंतखाबात होना तय हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें इस्लामाबाद में 5 बल्दियाती नशिस्तों पर जो है बाई इलेक्शन कराए जाएंगे, जिनमें 2 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 1 यूथ काउंसलर की खाली होने वाली सीट पर इंतखाबात कराए जा रहे हैं। जो ये सीटें मज़कूरा सीटें जो खाली हुई हैं, उनमें एक राजा खुरम नवाज़ जो कि कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं, और अली अवान जो वो भी कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं, जबकि सीमी एजी जो कि सेनेटर मुंतखब हुए हैं, पीटीआई की वाइस चेयरमैन थी, उनकी जगह पे जो है वो इलेक्शन कराए जा रहे हैं। इस वाले से इस्लामाबाद के मुकामी जो रहनुमा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, उन्होंने कागजात नामजदगी 8 अक्टूबर को जमा करा दिए थे। किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से अभी किसी भी अपने उम्मीदवार को टिकट जो है वो नहीं दिए गए, और दो हफ्ते सिर्फ इंतखाबात में रह गए और कोई किसी किस्म की इस्लामाबाद में गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। लेकिन देखना यह है कि अगले हफ्ते तक जो है सियासी पार्टियों की जानिब से इन उम्मीदवारों को टिकटें देने का ऐलान कर दिया जाएगा, और मुतवक्का तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के हारे हुए उम्मीदवार थे उनमें अक्सरियत को टिकटें दी जाएंगी, जबकि पीटीआई के चंद नए चेहरे जो है इन इंतखाबात में देखने को मिलेंगे। जी राजा काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि एलएनजी इंपोर्ट और एलएनजी टर्मिनल के माहदों पर नज़रसानी का फैसला वापस ले लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि एलएनजी टर्मिनल भरपूर सलाहियत के साथ काम कर रहे हैं। मुआहिदे पर नजरसानी की सूरत में सरमायाकारी मुतासिर होगी। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सईद से। मलिक सईद, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी, वफाकी हुकूमत ने 1 साल के बाद एलएनजी टर्मिनल और एलएनजी इंपोर्ट के मुआहदों की नज़रसानी करने का फ़ैसला वापस ले लिया है। ये फ़ैसला नैब में इंक्वायरी होने की वजह से वापस लिया गया है। काबीना को बताया गया कि ये मामले नैब में जो है वो ज़ेर इंक्वायरी हैं, और जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती इन मुआहदों पर नज़रसानी नहीं की जा सकती। इसके अलावा वज़ारत कानून ने अपनी राय देते हुए ये भी बताया है कि अगर हम इन मुआहदों पर नज़रसानी करते हैं तो इससे जो सरमायाकार है वो मुतासिर होगा और सरमायाकारी करने से हिचकिचाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल भी इन्हीं के माहदों के मामले पर नैब में ज़ेर हिरासत हैं। इस मामले पर मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा जब नैब की इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी। ज़राए ने हमें बताया कि ऑडिटर जनरल ऑफिस ने अपनी खसूसी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली है, जो जल्द सदर को पेश करने के बाद पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। जी शुक्रिया मलिक सईद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ी और आपको बताएं कि लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के स्टेशन पर वाटर सप्लाई कनेक्शन ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके हैं। वासा लाहौर को फौरी काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। वासा हुकाम की जानिब से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के तमाम 26 स्टेशन पर वाटर सप्लाई और सीवरेज के कनेक्शन की फरहमी के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई, जबकि निजी फर्म से कनेक्शंस का काम कराने का फैसला किया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बाबर अली हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अली, बताइएगा, इस काम को मुकम्मल करने की हिदायत की गई है, कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है? जी, वासा की जानिब से ताहाल जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के स्टेशन पर पानी के कनेक्शन नहीं किए गए, जिस पर पंजाब हुकूमत ने वासा को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। पंजाब हुकूमत रवां साल के आखिर तक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे को चलाने के लिए कोशा है, जिसकी वजह से तमाम मुतलका इदारों को काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं, जिसके पेश नज़र वासा काम की जानिब से अब पानी के कनेक्शंस के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई है और इस मद में निजी कंट्रैक्टर फर्म की खिदमात लेने का फ़ैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि सिविल वर्क्स के साथ जो पानी के कनेक्शन ना करने की वजह से अब दोबारा मुतअद्दिद मकामात पर खुदाइयाँ करनी पड़ेंगी। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के स्टेशंस पर फिल्ट्रेशन प्लांट की सहूलत मौजूद ना होने की वजह से शहरी साफ़ पानी पीने से महरूम होंगे। जी, क्रिकेट स्टेडियम हिफाजत ना होने के बायस खस्ता हाल हो गया है। स्टेडियम में बकरियां घूमने लगी हैं। मज़ीद जानते हैं रियाज गोंदल से। रियाज, बताइएगा इस मुतालिक।
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जेलम का क्रिकेट स्टेडियम जो है वो दो महकमों के दरमियान जो है वो तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पीसीबी और म्यूनसिपल कमेटी जेलम के दरमियान जो है वो तनाज़ा चल रहा है कि जेलम का क्रिकेट स्टेडियम जो है वो किसकी मलकियत है और किसने इसकी देखभाल करनी है। लावारिस जो क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर जो है हमें हर तरफ जंगल जो है वो नज़र आता है और जो खिलाड़ी हैं उनकी तादाद कम नज़र आती है, जबकि जो बकरियाँ चरने की तादाद जो है हमें कहीं गुना ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए किसी किस्म की जो सहूलियात वो नहीं है। जो ये स्टेडियम है सबसे ज़्यादा जलसा गाँव के लिए ये इस्तेमाल होता है। मुल्क के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उन्होंने भी 3 बार इस क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो जलसे किए हैं। जेलम के क्रिकेटर ने इमरान खान साहब से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो नोटिस ले और खिलाड़ियों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ये जेलम के क्रिकेट स्टेडियम में सहूलियात फराहम करें। जी।